Hello there, thank you very much for joining me. It's Mohammed Fahim. Today's lesson is about parts of speech. Parts of speech, this means अज़्ज़ाए कलाम. जो भी हम गुफ्तगू करते हैं, the basic thing that we need to understand to use certain elements, certain factors, certain components, certain parts that can make our speech correct, and this is called parts of speech, यानी गुफ्तगू के अज्जा. So let's move to our whiteboard. Parts of speech, यानी अज़्ज़ाए कलाम. First of all, the first part of speech is noun. Noun means the name of anything, any person. कोई जानदार है, बेजान है. That is called noun, जिसे उर्दू में हम इस्म भी कहते हैं. So name, for example, my name is Mohammed, so this means it's a noun. अगर जानवरों में से कोई हो, for instance, cat, rabbit, dog, anything, any name, उसे भी noun ही कहेंगे. Or that's a very significant in English. And then we move forward. The next one is pronoun. Pronoun is the word that replaces noun. यानी कि जो noun की जगह पे आता है उसे pronoun कहते हैं. और pronoun जो है वो different types के होते हैं. For instance, first person, second person, third person. First person जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जब मैं खुद बात कर रहा हूँ, जैसे first person इसमें I और plural में we आएगा. Similarly, you जो है वो second person कहलाता है, he, she, it, और plural में they जो है वो third person कहलाता है. And there are different status of pronouns. For instance, फर्स्ट पर्सन का ये कॉलम है जो कि वेरी लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड यू कैन सी दिस फर्स्ट पर्सन प्लूरल. आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है. याद रखिए जो मेन आपकी कैटेगरीज हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ही, शी, इट है, इनको नॉमिनेटिव केस कहते हैं. अब इसमें आई जो है वो सिंगल है, वो जो है हम यानी प्लूरल है, यू सिंगल है और यू प्लूरल के लिए भी यूज होता है. ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम यानी कि नाउन जो है वो सिंगल है, और थर्ड पर्सन में दे और प्लूरल नाउन जो कि जमा के लिए इस्तेमाल होता है. प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम इंग्लिश राइटिंग को अटेम्प्ट करते हैं देन वी मेक सम मिस्टेक्स, और वो जो मिस्टेक्स ऐसी हैं दैट एक्चुअली स्पॉइल एवरीथिंग व्हेन वी राइट. So what we need to understand, these are the subjective forms that's also called nominative case, and then possessive adjectives. Normally हम इन्हें possessive case भी कहते हैं, लेकिन ये possessive adjectives हैं. So I का my है, possessive case my है. For example, इसमें possessive case की possessive adjective के बाद याद रखिए कि इसके बाद noun का आना जरूरी है. For instance, my book, my pen, my car, my office, my job. Similarly, our we का our है, जैसे कि our house, our school, our tickets. So इनके बाद noun का आना जरूरी है. मैं ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज possessive adjective and possessive pronoun ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. हम इसके बारे में बात करेंगे. देन you का your है, he, she, it का he का his है, she के लिए her और it के लिए its, they की their, और प्लूरल नाउन जो भी होगा वो एज इट इज आ जाएगा अपनी कंडीशंस के हिसाब से. नेक्स्ट वी मूव टू फॉर ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव का मतलब है व्हेन यू आर नॉट डूइंग समथिंग एक्टिवली, जब कोई काम आप पे हो रहा हो, और यू आर अ सेकंड हैंड इन अ वे, आप सेकंड हैंड रिस्पोंडेंट होते हैं. फॉर इंस्टेंस आप पे ही कोई काम हो रहा होता है, जैसा कि आई का मी है, he beats me, वो मुझे मारता है. It's for me, ये मेरे लिए है. So in sentences में I'm not active person, instead I'm an objective. मैं ऑब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्टिव है मेरा. तो इसमें we के लिए us है, you के लिए you आएगा, और he के लिए him है, she के लिए her है, और it के लिए its है, and then them है for they के लिए them है. And then possessive pronoun, मैंने आपसे कहा था I'll differentiate about it. possessive pronoun में और possessive adjective में क्या फर्क है? याद रखिए possessive adjective में जब आप इन फॉर्म्स में से कोई भी यूज करेंगे then you have to use a noun after these words. However, when you are using possessive pronouns, this means you are not going to use anything after them. For example, I का mine है, this book is mine. अब इसमें पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा. जो भी आपकी चीज है, नाउन है, वट एवर इट इज, यानी इसके बाद कुछ नहीं आएगा. इट्स आवर्स या दिस हाउस इज आवर्स, ये हमारा घर है. योर्स, हिज, हर, इट्स एंड देयर्स. इट्स देयर कार, इट्स देयर्स, यानी कि यहाँ एंड होता है. देन द लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव. इन्हें रिफ्लेक्सिव केस भी कहते हैं. व्हाट इज इट? इसमें आप अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, मेरे लिए.
ourselves हमारे लिए, yourself या yourselves ज्यादा हो तो उनके लिए, इसी तरह himself, herself, और ये इसकी रिफ्लेक्टिव फॉर्म्स हैं जिन्हें रिफ्लेक्सिव केस भी कहा जाता है. And then we have verb. That's a very important element in any language. Verb क्या है? Verb is actually action word. ऐसा word जो कि action दिखाता है, काम दिखाता है. For instance, sleep सोना, run भागना, laugh हंसना, weep रोना. So this is an action. ये एक काम है, ये एक एक्टिविटी है और इसको वर्ब कहते हैं. सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स. मेजर जो टाइप्स हैं उन पर बात करेंगे. एक तो कंप्लीट वर्ब होता है, एंड इफ यू सी इसमें टाइप्स हैं. कंप्लीट वर्ब है जैसे कि कोई भी है, ईट खाना, ये कंप्लीट है, अपनी सेंस में पूरा मीनिंग दे रहा है हमें. स्लीप सोना, यानी सोना एक एक्टिविटी है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. एंड देन देयर इज अ लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब क्या है? बेसिकली जो आपके मेजर काम को लिंक करता है विद द सब्जेक्ट. एंड व्हाट इट इज? बेसिकली फॉर्म ऑफ टू बी जो भी है, फॉर्म ऑफ टू बी क्या है? इज, एम, आर, या इस तरह की जो भी वर्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्म ऑफ टू बी एंड दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. सो इसमें क्या है? He is beautiful, वो खूबसूरत है. She is beautiful, वो खूबसूरत है. नॉर्मली ही के साथ हैंडसम लगता है, ब्यूटीफुल नहीं लगता. He is handsome. अब हैंडसम एक क्वालिटी है. आपका जो is है वो बेसिकली लिंक कर रहा है किसके साथ? आदमी के साथ उसकी ब्यूटी को. सो दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब ये आपके जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये बेसिकली इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. ये आपके एक्शन को शो करते हैं कंप्लीटनेस देने के लिए. ये मीनिंग को कंप्लीट करते हैं जिसकी एक मुकम्मल सेंस होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग, यानी इज जो है वो और साथ में जो ईट के साथ आई है ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है. सो ये आपके टेंस को, आपके जो आपका सेंटेंस है उसको पूरा मीनिंग देते हैं. इसके बारे में एक सेपरेट बहुत ब्रीफ सा लेसन होगा. आई रिकमेंड यू वॉच दैट वीडियो एज वेल ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक एज वेल. सो इसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि बेसिकली हम इन्हें वर्ब्स को किस तरह और डिफरेंट टाइप्स को किस तरह यूज कर सकते हैं. एंड देन इफ वी सी देयर आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव जो है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जी तारीफ को कहते हैं. नो, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश. इट एड्स द मीनिंग. ये मीनिंग जो है वो एक्सटेंड करता है. इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज वाइज, मेरा भाई अकलमंद है. अब वाइज इसमें एक क्वालिटी है. अब अकेली अगर हम कहें वाइज वाइज तो ये तारीफ है, जैसे कि हम शुरू में उर्दू में पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन किसकी तारीफ है? एक्चुअली माई ब्रदर की. सो बेसिकली एडजेक्टिव आपके नाउन को या प्रोनाउन के मीनिंग को, उनके साथ जुड़ी हुई चीजों को वाज़े तौर पर एक्सप्लेन करता है. एंड देयर आर 4 टाइप्स. कौन सी टाइप्स हैं? बेसिकली ये आपकी क्वालिटी को जाहिर करता है. इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस जो है वो क्वालिटी है. तो आप कहते हैं कि दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, मतलब कि जो इंटेलिजेंस का फैक्टर है वो उस लड़के के साथ एसोसिएटेड है, तो उस लड़के से जो है वो उसका रिश्ता है. एंड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ दैट बॉय. ये नहीं कि उसकी तारीफ. अब अगेन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को जाहिर करता है, यानी कि कितने नंबर्स हैं जिनको जाहिर करता है. एंड देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव. फॉर एग्जांपल, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है. अब इसमें पोसेसिव एलिमेंट भी है. सो पोसेसिव केस, डेमोन्स्ट्रेटिव केस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये इस तरह की तमाम चीजें जो सेंटेंसेस में आती हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. बेसिकली इन्हें एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, जो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के साथ एसोसिएटेड चीजें होती हैं, उनके मीनिंग को इंक्रीज करती हैं. एंड देयर विल बी अ सेपरेट एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज क्वालिटीज, क्वांटिटीज, डेमोन्स्ट्रेटिव फैक्टर एंड पोसेसिव केसेस very clearly. Now we move forward to the next phase. Now we have adverb. Adverb actually it adds the meaning to a verb, adjective, conjunction and preposition. एडवर्ब का मेन रोल है, ये आपके वर्ब, आपके एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इस तरह की जो चीजें हैं उनके मीनिंग में इजाफा करता है. और इसमें जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. फॉर एग्जांपल, टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस रिलेटेड एडवर्ब्स हैं, और हम इन्हें पहचान कैसे सकते हैं आइए मजीद देखते हैं. फॉर इंस्टेंस, टाइम रिलेटेड एडवर्ब जो हैं इनमें मखसूस अल्फाज आते हैं, जैसे कि अगो, बिफोर, ऑलरेडी, अर्ली, नाउ, लेट, soon, since, presently, tomorrow, yesterday, never, again.
So these adverbs are time related, लाजमी तौर पर ये टाइम्स में आएंगे। इनकी कंप्लीट एक्सरसाइज में प्रोवाइड करूंगा और आप बड़ी आसानी से इन्हें समझ सकते हैं, सेंटेंसेस में से पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लेस रिलेटेड एडवर्ब्स, ये चूंकि जगह कम थी मैंने इस तरह किया, here, there, outside, inside, within, without, above, below, down, backward, everywhere, around. So these are place related adverbs. ये indicate करते हैं कि आप place के बारे में बात कर रहे हैं. And then we have about manners, adverb of manners, जैसे कि nicely, badly, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, quickly, तेजी से, well, बहुत अच्छा, gladly, बड़ी खुशी से. So ये manners को जाहिर करते हैं इंसानों के. And then we have another parts of speech. There's a preposition. Preposition is a very useful, very compulsory thing you can say, and it actually helps to form the sentence, give the full meaning to a sentence. उसके meaning को मुकम्मल करता है ये basically. कहाँ पे यूज किया जाता है? It's used before a noun or pronoun to establish its relationship with another noun or pronoun. यानी preposition एक्चुअली जब यूज की जाती है तो इससे पहले भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा और इससे बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। सो बेसिकली ये लिंक करता है सब्जेक्ट को भी और आखिरी जो आपका सब्जेक्ट या नाउन मैनर्स के एतबार से आता है उससे भी। फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं नाउन ऑफ, इसकी एग्जांपल क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। फॉर एग्जांपल द बुक एक चीज का नाम है यानी नाउन है, और यहां पे ऑन हमने यूज किया, द टेबल भी किसी चीज का नाम है। सो बेसिकली ऑन जो है ये लिंक क्रिएट कर रहा है टेबल का और बुक का। हमें बता क्या रहा है? द बुक इज ऑन टेबल, बुक यानी किताब जो है वो मेज पर है। सिमिलरली आई एम इन द क्लास, अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, क्लास जो है ये नाउन है। ये बेसिकली प्रोनाउन भी इन से टच हो रहा है, क्लास भी इन से टच हो रहा है। मतलब क्या है? आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में। बेसिकली इट इज लिंकिंग अ नाउन एंड अ प्रोनाउन to give the full meaning or to complete the completeness of meaning, यानी कि मीनिंग की completeness को शो करने के लिए। The boy is running, अब ये एक्शन को दिखा रहा है बेसिकली। आफ्टर द बॉल यानी लड़का जो है वो बॉल के पीछे भाग रहा है। अब द बॉय इज रनिंग एक एक्टिविटी है यानी ये नाउन है, द बॉय इज रनिंग लड़का भाग रहा है, द बॉल के पीछे। सो आफ्टर जो है ये बेसिकली प्रेपोजिशन के तौर पर यूज किया गया टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन द नाउन एंड the another noun or pronoun. And then we have types of prepositions. I would like to note that there is a complete separate lesson of prepositions because ये comprehensive subject है prepositions का, और इसमें different types of prepositions है, time related है, place related है, manners related है, और बहुत सी चीजें हैं। Types क्या है जी? जो time related prepositions हैं normally हम आमतौर पर in, at, on, before, after. For example, I'll see you in July, मैं आपको जुलाई में मिलूंगा। I'll meet you at 10 o'clock, मैं 10 बजे आपसे मिलूंगा। So they actually indicate time. ये टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। Similarly we have place related. अब ये बात याद रखिए कि बहुत सी prepositions कॉमन हैं जो कि place से related, time से related इन चीजों के लिए इस्तेमाल होती हैं। So there is nothing to be confused about it. And then we have in, on, under, between, behind, and we have direct movement के लिए जो prepositions होती हैं जैसे कि by है, and then with है, in है, preposition of cause या reason जो कि reason के लिए होती है because. For example, he lost the match because he didn't perform well. अब दोनों sentences में इसने जो है वो ना सिर्फ conjunction का रोल प्ले किया है बल्कि preposition के तौर पर meaning भी पूरा किया है। And then because of, due to, owing to, and then we have prepositions of possession यानी जो चीज आपके पास होती है, आपकी मलकियत में होती है, something that is in your capacity, in your possession, that is called preposition of possession, and with, in, of, इस तरह की far, इस तरह की prepositions हैं। And then we have another part of speech that is called conjunction. Conjunction is basically certain words that combine two statements, जो कि दो statements को इकट्ठा करती हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो कि दो जुमलों का एक जुमला बना देते हैं, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं two statements, and they combine them to give the correctness and the fullness of meaning. For instance, हमारे सामने है it joins two statements. Example क्या है? But, because, since, or, no, इस तरह के बहुत से हैं। For example, he missed the train because he was late. अब जहां पे conjunction आप यूज करेंगे याद रखिए, if there are two statements and you are using conjunction, इसमें आप sentence के बाद full stop नहीं लगाएंगे।
बल्कि दरमियान में जब आप ये कंजंक्शन वर्ड्स यूज करेंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे, तो आप वो फुल स्टॉप वगैरह खत्म कर देंगे क्योंकि स्टेटमेंट एक हो जाएगी। सो आप खुद इसकी एग्जांपल जो है वो तैयार कर सकते हैं और इसे पॉलिश कर सकते हैं। वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से मुराद है सर्टेन वर्ड्स दैट शो यू इमोशंस एंड फीलिंग, ऐसे अल्फाज जो कि आपकी एहसासात को, आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बात को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह, this means something is surprising or something is sad, and then hooray, we have won the match, यानी खुशी का इजहार है। and then wow, if something is surprising, so we use these words। so in emotions को, in gestures को, in अल्फाज को हम interjection कहते हैं। there are separate lessons on each of these to comprehensively understand and to practice the exercises। thank you very much for joining me। see you in the next lesson। Mohammed।